اپنی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں بجلی بلوں میں مقررہ سبسڈی سے لاکھوں صارفین کے محروم ہونے کے خدشات۔ لیسکو میں سبسڈی کی منظوری میں غیر معمولی تاخیر سے معاملہ الجھ گیا۔ لیسکو صارفین کو ہر ماہ بجلی کے بلوں میں 3 ارب روپے کی سبسڈی دی جاتی ہے۔ بجلی کے بلوں میں مقررہ سبسڈی سے لاکھوں صارفین کے محروم ہونے کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ لیسکو میں سبسڈی کی منظوری میں غیر معمولی تاخیر سے معاملہ الجھ کر رہ گیا۔ وفاقی حکومت کی مقررہ سبسڈی کی منظوری میں تاخیر سے بجلی کے بلوں میں کمی نہیں لائی جا سکے گی۔ لیسکو صارفین کو بجلی بلوں میں 3 ارب روپے کی سبسڈی دی جاتی ہے۔ کمپنی کی جانب سے ہر ماہ کی 6 تاریخ کو سبسڈی کیس وزارت پاور ڈویژن کو ارسال کیا جاتا ہے۔ رواں ماہ بلوں میں سبسڈی کی منظوری میں تاخیر ہونے سے مشکلات پیدا ہو گئیں۔ لیسکو کی جانب سے سبسڈی کے سوموار کے روز وزارت پاور ڈویژن کو بھجوایا جائے گا۔ حتمی منظوری ملنے پر لیسکو کی جانب سے بجلی کے بلوں میں سبسڈی دی جائے گی۔ انتظامیہ کی جانب سے برائلر چکن کا پرچون ریٹ جاری، مہنگے داموں فروخت پر قابو نہ پایا جا سکا۔ مرغی کا گوشت 20 سے 30 روپے اضافی قیمت میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں مرغی کا گوشت 595 سے 610 کلو تک فروخت ہونے لگا۔ ادھر سبزیاں بھی مہنگے داموں بکنے لگیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے برائلر کچن کا پرچون ریٹ جاری کر دیا گیا۔ چکن کی مہنگے داموں فروخت پر قابو نہ پایا جا سکا۔ مرغی کا گوشت 20 سے 30 روپے اضافی قیمت میں فروخت ہو رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے مرغی کا پرچون ریٹ 577 مقرر، اوپن مارکیٹ میں 595 سے 610 تک فروخت ہونے لگا۔ ادھر سبزیوں کی سرکاری قیمت اور اوپن مارکیٹ کی قیمت میں فرق برقرار ہے۔ آلو، پیاز، ٹماٹر تمام سبزیوں کی سرکاری قیمت میں اضافے کے ساتھ بیچا جا رہا ہے۔ درجہ اول کے آلو کی سرکاری قیمت 80، بازار میں 100 روپے کلو، ٹماٹر کی سرکاری قیمت 45، بازار میں 60 روپے کلو میں بکنے لگا۔ پیاز 60 کے بجائے 70 روپے کلو، لہسن سرکاری قیمت 190، بازار میں 250 روپے کلو، ادرک تھائی لینڈ 455 کے بجائے 500 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ شہریوں کی جانب سے پرائس کنٹرول کمیٹیوں سے سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد کروانے کی اپیل کی گئی۔ محلہ قریشی نور شاہ روڈ مزنگ کے علاقہ مکین درینہ سیوریج مسائل پر سراپا احتجاج، مظاہرین کے ہاتھوں میں پلے کارڈز تھامے واسطہ انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی، اعلیٰ حکام سے صورتحال کا نوٹس لینے اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ محلہ قریشی نور شاہ روڈ مزنگ کے مکین درینہ سیوریج مسائل پر سراپا احتجاج بن گئے۔ ظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز تھامے واسطہ انتظامیہ کے خلاف نعرے لگائے۔ مکینوں نے شکوہ کیا کہ ان کا علاقہ کئی سالوں سے بدترین سیوریج مسائل سے دوچار ہے، جس سے گلیوں میں سیوریج کا پانی جمع رہتا ہے۔ مسلسل پانی جمع رہنے کے باعث گلیاں ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں۔ بارش آنے کے بعد علاقہ پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ آنے جانے کی شدید تکلیف ہے، بارش ہو جائے ذرا کا پانی ڈرین بند ہو جائے ڈکا لگ جاتا ہے۔ نمازیوں کو آنے جانے کی تکلیف ہے، کوئی خوشی غمی علاقے میں بندہ آ جا نہیں سکتا۔ نمازی یہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں، ان پہ چھینٹیں پڑ رہی ہوتی ہیں، 3-4 عورتوں گر چکی ہیں، باقاعدہ ان کی لاتیں ٹوٹ چکی ہیں۔ قریشی محلہ کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ منتخب سیاسی نمائندے اور انتظامیہ بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اعلیٰ حکام نوٹس لے کر مسائل حل کروائیں۔ رومیل الیاس، سٹی 42۔ لاہور کی حدود میں طیاروں کی سیفٹی کے لیے اہم اقدام، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، وائلڈ لائف اور انوائرمنٹ پروٹیکشن اتھارٹی متحرک ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں نو برڈ زون بنانے کے لیے رنگ فینسنگ کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پنجاب حکومت کے جاری حکم نامہ کے مطابق ماحولیاتی حفاظتی انتظامات کے بغیر قائم پولٹری فارم، بیکریوں اور ذبح خانوں پر پابندی لگائی جائے گی۔ چمڑا رنگنے، چمڑے سے اشیاء بنانے والی کمپنیوں پر ماحولیاتی ضابطوں کا سخت اطلاق۔ کھلے عام جانوروں کی کھالوں کی دھلائی پر پابندی لگا دی گئی۔ ہوائی اڈوں کے قریب کوڑا کرکٹ پھینکنے پر مکمل پابندی ہوگی۔ ڈھکن والے کوڑے دانوں کا استعمال لازمی قرار دے دیا گیا۔ لاہور مشرقی بائی پاس، مناوا ہسپتال، PKLI، چنگی امر سدھو، اچھرا، چاہ میرا علاقے نو برڈ زون قرار دیے گئے۔ ان علاقوں سے آپریشن کا آغاز ہوگا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے فضائی حفاظتی حصار رنگ فینسنگ کے ذریعے پرندوں کے طیاروں سے ٹکراؤ اور حادثات میں کمی ہوگی۔ دنیا بھر کے ہوائی اڈوں کے قریب نو برڈ زونز بنائے جاتے ہیں۔ بادامی باغ کے علاقے میں خستہ حال مکان کی چھت گر گئی، حادثے میں 2 بچے جان کی بازی ہار گئے۔ 5 سالہ توصیف اور اس کا کزن 7 سالہ سبحان جاں بحق ہوئے۔ حادثے میں توصیف کا بھائی 3 سالہ ریحان اور دادی زخمی ہوئے۔ لاہور میں چھت گرنے کا ایک اور افسوسناک واقعہ بادامی باغ کے علاقہ کھوکھر روڈ پر پیش آیا، جہاں شہری دانش رضا کے مکان کی خستہ حال چھت گری تو ملبے تلے 3 بچوں سمیت 4 افراد دب گئے۔ 5 سالہ توصیف، اس کے بھائی 3 سالہ ریحان، کزن 7 سالہ سبحان اور دادی اماں کو ملبے سے نکال کر ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے توصیف اور سبحان دم توڑ گئے۔
मासूम बच्चों की मैयतें घर पहुंची तो कोहराम बर्पा हो गया। तौसीफ की वालिदा कहती हैं उनका शौहर बीमार है जो काम काज के लायक नहीं। लोगों के घरों में काम काज करके बच्चों का पेट पालती हैं। माली वसाइल ना होने की वजह से वो अपने बेटे से महरूम हो गईं। मैं एक जो खुद काम बच्चों लोगों के करके अपने बच्चों को पाल रही हूँ, मेरे अलावा कोई और नहीं करता। इस वजह से मैं ये नहीं सब कर सकती। रोटी पता नहीं कैसे मैं अपने बच्चों की शाम को पूरी करती थी और मुझे नहीं पता था कि मैंने आज अपना बेटा ही खो देना है। आज मेरा बेटा अच्छा वाला था, बस ये छत गिरने की वजह से आज मैंने अपने बेटे को भी खो दिया और दूसरे की टांग भी टूट गई है। पुलिस ने जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद बच्चों की लाशें वरुसा के सुपुर्द कर दी। उनकी तदफीन आबाई इलाका शेखुपुरा में होगी। कैमरामैन सज्जाद अहमद के साथ इसरार खान, सिटी 42। ज़मीन.com के ज़ेर-ए-तमाम रंगारंग प्रॉपर्टी सेल्स मेला सजाया गया। ज़मीन.com की जानिब से स्विस मॉल की लॉन्चिंग तकरीब डीलर्स ने प्रोजेक्ट से मुतालिक सार्फिन को रहनुमाई फ्राहम की। सीनियर डायरेक्टर सेल्स चौधरी लईक इफ्तिखार ने कहा, हमारी मुसलसल कोशिश यही है कि आवाम की मायार ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाले मंसूबे पेश किए जाएँ। ज़मीन.com के ज़ेर-ए-तमाम रंगारंग प्रॉपर्टी सेल्स तकरीब का पीसी होटल में एहतमाम हुआ। ज़मीन.com की जानिब से स्विस मॉल की लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद भी किया गया। सीनियर डायरेक्टर सेल्स चौधरी लईक इफ्तिखार ने खुसूसी शिरकत की। उनका कहना था, मुसलसल कोशिश है कि लोगों का म्यार जिंदगी बेहतर बनाने वाले मंसूबे इनकी खिदमत में पेश किए जाएं। Today we have launched their project and we feel that we will try our levels to serve them and to sell their inventory as soon as possible. इसके अलावा अगर हम देखें तो आज एक प्रोजेक्ट और भी, जैसे हम ज़मीन आग से हमने लॉन्च किया था द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन पंजाब, दैट इज बाय ज़मीन डेवलपमेंट। आज ज़मीन वॉल्ट के ऊपर भी काम किया गया है, उसको भी शोकस ला के दिखाया जा रहा है लोगों की ये बिल्डिंग कैसी होगी और इंशाल्लाह इसकी लॉन्चिंग हमारी नेक्स्ट मंथ होगी प्रॉपर तरीके से। और दैट इज अगेन द टॉलेस्ट बिल्डिंग। हमने पुरानी बिल्डिंग का रिकॉर्ड चौड़ा वो 419 फुट थी, ये 450 फुट है। तकरीब में मैनेजिंग डायरेक्टर शेख कलीम अहमद, डायरेक्टर बासिल हफीज, उस्मान तलत, अली रेहान और मोहम्मद फरोख शरीक हुए। शेख कलीम अहमद का इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि पाकिस्तान के हल्का रियल एस्टेट में सबसे मुस्तनद और बाएतमाद इदारा ज़मीन.com है। ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट में शराकत दारी से गुरेजा है जिसमें शकूक मौजूद हों। मैं ये समझता हूँ एज एन इन्वेस्टर, एज एन डेवलपर, अगर ये इतनी ज़्यादा अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये बहुत क्लैरिटी के साथ और अपने इन्वेस्टर को सिक्योर करके ही चीज़ें बेचेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि डेवलपर के लिए में तो है ज़रूर ये बात मुश्किल, लेकिन फॉर द इन्वेस्टर इट्स अ वेरी गुड थिंग टू सेव इन्वेस्ट इन लाहौर। डीलर्स की बड़ी तादाद ने सार्फिन के प्रोजेक्ट से मुतल्लिक रहनुमाई की। तकरीब के अख्ताम में न्यू प्रोजेक्ट लॉन्चिंग केक भी काटा गया। हाजरीन ने ज़मीन.com की काविशों को खूब सराहा, प्रोजेक्ट्स पर अपने एतमाद का इजहार भी किया। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। अपोजिशन के 26 अराकीन की मौतली का मामला पंजाब असम्बली में बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ गया। अपोजिशन और हुकूमत में कई मामलात पर इत्फाक हुआ। मीटिंग में फैसला किया गया कि आइंदा 3 से 4 रोज़ के दौरान एक और बैठक होगी जिसमें मामलात को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेरे सदारत अपोजिशन के 26 अरकान की मुअत्तली पर दूसरा सेशन पंजाब असम्बली में हुआ। सेशन 2.5 घंटे तक जारी रहा। इजलास के बाद अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर का कहना था, आज हमारी और हुकूमती अरकान के दरमियान होने वाली गुफ्तगू काफी मुस्बत रही। मीटिंग में सामने आने वाले निकात को अपनी पार्लिमानी पार्टी के सामने रखेंगे। आइंदा 3 से 4 रोज में एक और सेशन होगा। 2 घंटे की मीटिंग हुई और उसमें हमने फिर नेक्स्ट मीटिंग पे हम लेके गए, जो कि अगले 2 या 3 दिन में डेट का ऐलान कल तक हो जाएगा। हम दोबारा एक और सिटिंग करेंगे। डेफिनेटली ये मामला हमारे अपने अपने स्टैंड का है, हमारी पार्टीज का है और हमने अपने पार्टीज के विजन को आगे लेके चलना है। सूबाई वजीर खजाना मुज्तबा शुजाउर रहमान का कहना था, हमारे और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात अच्छे माहौल में हुए। बड़ा अच्छा हमारा ये सारा सेशन रहा है जो पिछले 2-2.5 घंटे का था और अभी कुछ चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई हैं, मगर इस चीज़ पे क्योंकि हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम सियासी वर्कर हैं और ये असेंबलियां जो हैं ये हमारा घर है और ये हमारे प्रेस्टिजियस जो है इदारे हैं और इस असेंबली की हुर्मत के लिए, इस असेंबली की इज़्ज़त व वक़ार को मजरूह नहीं होना चाहिए।
हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने इस अज़्म का इजहार किया कि मिलकर पंजाब असम्बली की पुरानी रिवायात को बहाल किया जाएगा। गालम गलोच, मार धाड़ के कल्चर को मिलकर दफन किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। लखू डेर शरीफपुरा और मनावा में तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट ने मनसूबों का जायजा लिया। डेर शरीफपुरा में तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट ने शिरकत की, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट ने तरक्याती कामों का जायजा लिया और अहले इलाका से मुलाकात भी की। सरदार अयाज सादिक का कहना था कि मुश्किल वक्त खत्म हो चुका, पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। शहबाज साहब ने मुश्किल फैसला करके नवाज शरीफ साहब की क़यादत में उन्होंने पीडीएम की हुकूमत की सरबराही संभाली और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाना शुरू किया, बल्कि पहले पाकिस्तान जो गिर रहा था उसको संभाला। 2024 के इलेक्शन के बाद जब हुकूमत इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ साहब की बनी और पंजाब में मरियम नवाज साहबा की बनी, मोहतरम नवाज शरीफ साहब की हिदायत पर जो मिशन था वो एक दफा फिर शुरू हुआ, जो 2017 में जिसको पटरी से उतार दिया गया था। सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट का कहना था कि वजीर आला मरियम नवाज ने पंजाब भर में तरक्याती कामों के लिए तारीख साज बजट दिया है, जिससे अवामी मसाइल में कमी आएगी। मुझे पता है कि इस इलाके में जो सबसे दरीना इशू था वो सीवरेज का इशू था। हम सोच भी नहीं सकते थे कि 35 अरब रुपए की खती रकम के फंड सीएम पंजाब इस हल्के में देंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रिया अदा करूंगा खुसूसी काविश के लिए सरदार अयाज सादिक साहब का, जो हमारे स्पीकर नेशनल असेंबली हैं, कि जिनकी खुसूसी काविश से ये सब कुछ मुमकिन हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज लखोडेर और शरीफपुरा के लिए 2.5 अरब रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने यूसी 174 और यूसी 178 का दौरा भी किया। कैमरामैन साकिब के साथ उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। बानी की रिहाई के लिए तहरीक कैसे चलानी है, प्लान तैयार कर लिया गया। मुल्क के हर जिला में एहतजाज शुरू कर रहे हैं। वजीर आला KPK अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, कौम में शऊर आ चुका है, 5 अगस्त के बाद एहतजाज का प्लान जारी किया जाएगा। अब्दालियन सोसाइटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, 5 अगस्त को मुल्क भर में एहतजाज करने के लिए निकल रहे हैं। हर गली हर कोने से एहतजाज होगा। अली अमीन गंडापुर ने लाहौर में जलसे की इजाजत के लिए वजीर आला मरियम नवाज से दरखास्त कर दी। लाहौर से कल हमारी पूरे पाकिस्तान के तमाम पार्लियामेंटेरियंस की और लीडरशिप की एक मीटिंग हुई है लाहौर में, जिसमें ये फैसला किया गया है कि आगे के लिए हमने किस तरह के लाएमल के साथ आगे बढ़कर इस तहरीक को दोबारा से 5 अगस्त तक पीक पे लेके जाना है और उसके बाद एक फैसला करना है कि आगे हमने कैसे बढ़ना है। अली अमीन गंडापुर का कहना था, बानी PTI ने कौम को शाऊर दिया, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बात की। गुलाम बनना है तो ये निज़ाम चलने दो, आज़ाद होना है, बच्चों को आज़ादी देनी है, खुददारी देनी है, खुद मुख्तारी देनी है, तो उसके लिए फिर आओ हमें ज्वाइन करो, मुत्तहिद हो जाओ और ज्वाइन करके अपने जायज़ हकूक़ के लिए, अपने आईनी हक के लिए इकट्ठे होकर हकीकी जमहूरियत की आज़ादी के लिए। वज़ीर आला KPK का कहना था, बानी PTI ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ। उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। पहले एहतजाज का ऐलान करते हैं फिर भाग जाते हैं। बलूचिस्तान और सवात के मामले पर बानी PTI का कोई जवाब नहीं आया। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली, जब आर्मी चीफ मुल्क से बाहर जाते हैं ये घिनौनी हरकतें शुरू कर देते हैं। तो अच्छी बात ये थी कि अपनी पूरी कैबिनेट के साथ आए और अपने MPs के साथ आए, तो उन्होंने एक फ़र्क भी देखा होगा कि जो तरक्की याफ्ता जो तरक्की करते सूबे हैं वहाँ पर जो है लोगों को इस तरह की सहूलियात मिलनी चाहिए। लेकिन मैं इनको दावत दूंगी कि अपनी कैबिनेट के साथ एक मुतालियाती दौरा रखें पंजाब का, उसमें हम उनको सिखाएंगे और उनको बताएंगे कि जो मेट्रोपॉलिटन्स होते हैं, बाकी तो चलें, अभी तो खैबर पख्तूनख्वा की हालत जो है वो आपके सामने है, पेशावर के अंदर से गंद कैसे उठाया जा सकता है। हम उनको सिखाएंगे कि तालीम कार्ड जो है जिसको 2027 से आपने शुरू करना है,
पंजाब के अंदर होनहार स्कॉलरशिप्स कैसे मिल रहे हैं, हम उनको बताएंगे और सिखाएंगे कि जो लैपटॉप्स हैं वो बच्चों की तालीम के लिए आज के ज़माने में कितने ज़रूरी हैं। हम उनको हॉस्पिटल्स में ले जाएंगे, उनको दिखाएंगे कि नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल जो है, जो इस वक्त 4 मंजिलों से ज़्यादा जो है वो तामीर हो गया है सिर्फ 1 साल के अंदर, ये कैसे होता है। उनको दिखाएंगे कि कार्डियोलॉजी अस्पताल जो है वो उसकी एमरजेंसी में इस वक्त जो सरगोदा के अंदर नया बना है। वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक और सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर का N119 सिंहपुरा का दौरा। UC 126 में रेस्क्यू एहलकार सैयद नाजिम हुसैन की शहादत पर अहले खाना से इजहार ताज़ियत की। दोनों रहनुमाओं ने कारकुनान से इलाके के मसाइल बारे भी दरियाफ्त किया। N119 सिंहपुरा में कारकुनों की वफात पर इजहार ताज़ियत के लिए वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक और सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हल्के का दौरा किया। UC 126 में रेस्क्यू एहलकार सैयद नाजिम हुसैन की शहादत पर अहले खाना से इजहार ताज़ियत की। इस मौका पर चेयरमैन मियां असलम, मियां इरफान, महर कासिम भी मौजूद थे। करंट लगने से जान बहक होने वाले उस्मान मुश्ताक के घर ताज़ियत के लिए गए। मियां आदिल रशीद दरोगा वाला के बहनोई मियां नसीर अहमद की वफात पर भी इजहार ताज़ियत किया। वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक ने कहा, पार्टी का झंडा उठाने वाले लोग हैं, इन्हें हम तनहा नहीं छोड़ सकते। बारिशों का सिलसिला चल रहा था, उसमें 2 शहादतें हुई हुई थी यहाँ पे। आप जानते हो नाजिम की खोकर टाउन के अंदर जब वो रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर जब वहाँ पे अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहा था तो छत गिरने की वजह से वहाँ पे उसकी शहादत हुई। तो उसके वालिद के साथ आके अफसोस करना, इजहार यकजहती करना और उसका जो बयानिया और उसकी तकलीफ़ को आवाज़ देना, इस मकसद के लिए हम दोनों भाई सुबह के हल्के में निकले। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हल्के में तरक्याती कामों बारे बताया। हम इस दुख की घड़ी में जब अपने दोस्तों के साथ खड़े होते हैं तो उनको ये हौसला होता है कि हमारी पार्टी, हमारे साथी जिनके साथ हमने ज़िंदगी बसर की है वो हमारे दुख दर्द में आते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक ऐसा टॉनिक और ऐसा इंजेक्शन है जो हर किसी को चाहिए। तो मलिक परवेज़ साहब की वो रवायत इंशाल्लाह लेके चलेंगे। आप देख रहे हैं कि हल्के में जा बजा तरक्याती कामों का जाल भी बिछा हुआ है। जो लाहौर पैकेज चल रहा है माशाल्लाह दिन रात उसमें काम हुआ है। पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिक वहीद ने भी इलाके में अवामी खिदमात के मंसूबों बारे आगाह किया। जिस तरह आवाम के अंदर उनकी दुखों का मदावा करते हुए, उनके घरों पर जाते हुए, उनके तरक्याती काम करते हुए, क्यों कि आज तक जितने भी तरक्याती काम हुए हैं अगर नून लीग को निकाल लें, नून लीग के तरक्याती कामों को निकाल लें तो पाकिस्तान आपको खंडा नजर आएगा। वुज़रा कारकुनों के घर में ताज़ियत के लिए गए। वफात पाने वालों के लिए खुसूसी दुआएं भी करवाई गई। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से चीन के IBI इंटरनेशनल ग्रुप के वक्त मुलाकात की। ग्रुप ने EV सेक्टर, सोलर पैनल्स, मैन्युफैक्चरिंग और वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि पंजाब को मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए सरमायाकारी का पुरकशिश मुकाम बना दिया है। चीन और जापान समेत मुतअद्दिद गैर मुल्की सरमायाकार कंपनीज पंजाब में अरबों रुपए की सरमायाकारी कर रही हैं। चीन के IBI इंटरनेशनल ग्रुप की पंजाब में सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। चीन के ग्रुप को पंजाब में सरमायाकारी पर हर मुमकिन ताउन फ्राहम करेंगे। एक्सपो सेंटर में जारी 3 रोज़ा पाकिस्तान इंटीरियर्स नुमाइश का आज आखिरी रोज़। नित नए डिज़ाइन के बेड्स, सोफ़ा सेट्स, डाइनिंग टेबल्स, डोर मैट्स और सवाती लकड़ी से तैयार करदा हैंडीक्राफ्ट्स नुमाइश की जीनत बने। पाकिस्तान इंटीरियर फर्नीचर नुमाइश में 100 से ज़ायद कंपनियों ने स्टॉल लगाए। नुमाइश को जीरो हेल्थ केयर पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किया, जिसका मकसद पाकिस्तानियों को सेहतमंद माहौल में खरीदारी की सहूलत देना था। एक ही छत तले मुख्तलिफ इक़साम के मियारी और जदीद फर्नीचर को शहरियों ने न सिर्फ सराहाया बल्कि 50% तक रियायत से भरपूर फायदा भी उठाया। नुमाइश में जहां फर्नीचर की वैरायटी ने तवज्जो खींची, वहीं स्टॉल्स पर खरीदारों का रश देखने से ताल्लुक रखता था। ऑर्गेनाइजर फातिमा जफर का कहना था कि ये नुमाइश इसलिए मुनक्किद की गई कि सार्फिन को हर तरह का फर्नीचर एक ही जगह पर मयारी कीमत पर मिल सके। तीनों दिन बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले। हमारी कोशिश होती है कि हम बेस्ट से बेस्ट जो हैं वो ब्रांड्स के साथ कोलैब करें, उनको रीच आउट करें और वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आएँ। और ऑडियंस के लिए ये होता है कि अप टू 50% डिस्काउंट है जो वो हासिल कर सकते हैं और बेस्ट से बेस्ट ब्रांड्स जो हैं यहाँ पे वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ब्रांड्स एंड ऑडियंस एज वेल। शहरियों की जानिब से तीनों दिन नुमाइश में भरपूर शिरकत की गई। शहरियों का कहना था कि यहाँ प्राइस भी मुनासिब है और डिजाइन भी बहुत अच्छे हैं। सवाती लकड़ी का हैंडीक्राफ्ट खास तौर पर बहुत पसंद आया। ये तो बड़ा अच्छा यानी कि एक होता है प्लेटफॉर्म के जहाँ पर हम अपने ब्रांड्स को यानी कि ग्रूम अप कर सकते हैं, यानी कि और पाकिस्तान में ओवरऑल ब्रांड्स यहाँ पे बल्कि काफ़ी 100+ ब्रांड्स हैं यहाँ पे,
تو سبھی ماشاءاللہ سے اپنا اپنا 100% دے رہے ہیں. آئی ریکمینڈ کہ لوگ جو ہے ایسی جگہ پہ آیا کریں جس قدر مہنگائی ہے اور چیزیں ہیں. تو یہاں پہ آلموسٹ جو ہے 50% پہ چیزیں ہیں. میں نے تمام فرنیچر دیکھا، وزٹ کیا، اور ایون کچھ ایسی یونیک چیزیں بھی ہیں جو کہ عموماً جب ہم مارکیٹس میں جاتے ہیں تو ہمیں نہیں ملتی. ایکسپو سینٹر کی یہ نمائش شہریوں کے لیے خوبصورت تجربہ ثابت ہوئی، جس میں فرنیچر خریدنے کے ساتھ ساتھ ایک مکمل انٹیریئر ایکسپو کرنے کا موقع بھی ملا. کیمرامین ٹیپو کے ساتھ افشا رضوان، سٹی 42 لاہور. لاہور میں صحت مند سرگرمیوں کے فروغ اور تاریخی ورثے سے جڑے رہنے کے لیے سائیکل ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی 80 سے زائد سائیکلسٹ نے حصہ لیا. محکمہ آثار قدیمہ اور عجائب گھر پنجاب کی جانب سے ثقافتی اور صحت بخش سرگرمی کا انعقاد کیا گیا. لاہور میں ہونے والی سائیکل ریلی میں مرد، خواتین، بزرگ اور بچوں نے شرکت کی. شرکاء لبرٹی چوک سے جیل روڈ، مال روڈ اور کینال روڈ سے ہوتے ہوئے مقبرہ علی مردان خان پہنچے. زبردست محسوس کر رہے ہیں. موسم ہمارا ساتھ نہیں دے رہا لیکن پھر بھی ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے کیونکہ لوگ میٹر کرتے ہیں اینڈ ہمارا میڈیم میٹر کرتا ہے. تو ہم سائیکلنگ کر رہے ہیں. تو میں نے جب سے سائیکلنگ سٹارٹ کی ہے تو مجھے پتہ چلا کہ جو ہسٹری ہے نا لاہور کی وہ کیا ہے. آپ اگر ان کی انفراسٹرکچر دیکھیں نا اندرون لاہور کا تو وہ صرف پیدل اور سائیکل والوں کے لیے. صحت مند سرگرمی کا مقصد شہریوں، خاص طور پر نوجوان نسل کو تاریخی ورثے سے متعارف کروانا اور صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینا تھا. اٹس ون آف دا لائف ٹائم ایکسپیرینس اور بہت اچھا لگ رہا ہے اور صحت کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جتنے زیادہ لوگ آ سکیں ان کو سائیکلنگ کلب ضرور جوائن کرنا چاہیے. تقریب کے شرکاء محکمہ آثار قدیمہ کے رویہ سے مایوس نظر آئے. کہتے ہیں بہترین سرگرمی منعقد کی مگر شرکاء کی رہنمائی کے لیے کوئی نمائندہ ہی نہیں آیا. کیمرامین ملک جاوید کے ہمراہ فاران یامین، سٹی 42. تفریح کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد فیملیز کے ہمراہ لبرٹی چوک میں موجود ہے. لبرٹی چوک میں خوبصورت برقی کمکموں سے بچے بڑے سبھی محسوس ہو رہے ہیں. شہری کس طرح انجوائے کر رہے ہیں جانتے ہیں توقیر اکرم سے. جی توقیر. جی دیکھیں، اتوار کا روز ہے اور ایسا ممکن ہی نہیں کہ لاہوریے جو ہیں وہ اپنا اتوار کا دن گھروں میں گزاریں اور کوشش کرتے ہیں مزے کے کھانے کے اور پارکس میں جانے کی. اور میں لبرٹی چوک میں موجود ہوں جہاں پر یہ پارک، یہ چوک جو ہے وہ تفریح گاہ بن چکا ہے اور فیملیز کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہیں. بچے بڑے سبھی خوبصورت جو لبرٹی چوک کو سجایا گیا ہے لائٹس کے ساتھ اس سے محظوظ ہو رہے ہیں. جتنا پی ایچ اے کی جانب سے یہاں پر کام کیا گیا ہے پودوں کے حوالے سے، اس کی گرینری سے بہت زیادہ محظوظ ہو رہے ہیں، فاؤنٹین سے محظوظ ہو رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ شہر کے درمیان میں اتنی خوبصورت جگہ ہونے سے جو ہے وہ دور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور جب اتوار کا روز ہوتا ہے تو بچے کوشش کرتے ہیں کہ وہ لبرٹی چوک آئیں تاکہ آس پاس جو ہیں وہ گاڑیوں کے نظارے بھی دیکھ سکیں، خوبصورت بلڈنگز بھی دیکھ سکیں اور ساتھ ساتھ یہاں پر کھیل بھی سکیں. اور فوٹیج میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے سارے جو ہیں وہ بھرپور انداز سے اپنے اتوار کے دن کو انجوائے کر رہے ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ لبرٹی چوک اور اتوار کا دن. جی توقیر، بہت شکریہ آپ کا. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.